Praise the Lord, everyone. Hallelujah. Glory to God. If you feel that you are stuck in your spiritual life, you got stagnant into your spiritual life, then today's preaching is for you. So this video is for you. There could be plenty of reasons why you got stagnant, why your growth had stopped, why your spiritual growth had stopped. Out of many reasons, one reason I'm telling, open your Bible and read the verse 14 of Matthew 6. You know what it says? It says, if you forgive others the wrongs they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. But if you don't forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. Okay, now I would like to compile some more things into this verse. The real meaning of this verse, इसका असली मतलब क्या है, यीशु में से क्यों ये बोल रहे हैं, why? अगर आप सिर्फ बाइबल को कंटेक्स्ट के अनुसार रीड करेंगे तो ये सिर्फ ऐसा लगेगा that you have to forgive others or else you won't be forgiven by the God Almighty himself. This is context, but there is a hidden meaning into it. In nowadays इंसान ईगो लेके चलते हैं. इन nowadays इंसान ईगो लेके चलता है. ईगो इतना ज्यादा कि अपोजिशन को क्षमा नहीं कर पाता है. They never try to forgive others. It's okay what he or she might have done to you. It's okay. Firstly, thank God that you are alive. तुम जीवित हो. परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में सब कुछ रिस्टोर करेगा. फुल स्टॉप. लेकिन but you don't give thanks to God that he kept you safe even though the opposition tried to hurt you or attack you, but the God protected you. Number one thing, if you are filled in ego, अगर आप ईगो को लेके चलते हैं तो क्या होता है, तो आप एक्चुअली ब्लाइंड हो जाते हैं. Whatever works God is doing for you, whatever works Jesus is doing for you, आप उस काम को, आप उस वर्क को अपने लाइफ में होते हुए नहीं देख पाते हो. हो सकता है the work had already accomplished, but you cannot see. Why? Because your spiritual eyes are not opened. कुछ चीजें spiritual eyes open ना होने से भी दिख जाता है. The real thing, if God did something in my life, I can see that thing. Yes, this is what God did in my life. But if I'm filled with ego, I cannot forgive others. I cannot let go the things. I cannot let these things that it's okay. Now let's move into the next. जो हुआ वो हुआ. अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? इंसान ऐसे भी है, 10 साल गुजर जाता है, 6 साल गुजर जाता है, 5 साल, 4 साल, 20 years, 50 years, 60 years, लेकिन वो दूसरे इंसान को क्षमा नहीं कर पाता है, फॉरगिव नहीं कर पाता है. दिस इज अ ट्रू थिंग. सच बात है. आप अपने मोहल्ले में देखो कि भाई के साथ दुश्मनी, बहन के साथ हो रहा है. These things are happening. दोस्त के साथ
छोटा सा चीज हुआ, लेकिन कंप्लीटली दे बिकेम एंटी. नाउ द थिंग इज दिस, इफ यू बिकम लाइक दिस, तो आप में और उसमें ऑपोजिशन में क्या डिफरेंस है? अगर आप भी हेट कर रहे हो, वो भी हेट कर रहे हैं, दोनों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू बोथ आर इक्वल्स टू. आप अलग नहीं हो. और मसीह हम लोग को ये सिखाता है कि अलग बनो, प्यार करो. जीसस टीचेस अस दैट love your enemies. You know, if you open Matthew chapter 5, 46 number verse, it says, why should God reward you if you love only the people who love you? मतलब कि यीशु इधर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ वो इंसानों को प्यार करके क्या फायदा जो कि आपको उल्टा प्यार करते हैं. बट ट्राई टू लव देम ऑल्सो हु डोंट लव यू. This is what Jesus teaches us. कुछ हटके हम लोग को सिखा रहा है. He is telling us that love your enemy. Even though if your enemy had hurt you, no problem, let go, forgive him. अगर आपको जस्टिस चाहिए, आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भय होना पड़ेगा. आपको परमेश्वर को वो चीज शेयर करना होगा. यू नो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ लॉज के अनुसार चलता है. सच में दिस इज वेरी ट्रू थिंग. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इमोशंस को लेके नहीं चलता, वो अपना लॉज को लेके चलता है. यू नो, इफ यू वांट कि गॉड मेरे लाइफ में कुछ करे, तो आपको गॉड को अलाउ करना पड़ेगा कि आप कुछ करे. इफ यू आर सीकिंग जस्टिस, दैट वो इंसान मेरे लाइफ में कुछ खराब किया है, he or she had hurted me very badly. Now you are seeking revenge. बाइबल ये कहता है, परमेश्वर ये खुद कह रहा है कि डोंट टेक रिवेंज, योर रिवेंज इज माइन. तुम खुद जाके रिवेंज मत लो, मैं लूंगा. मैं तुम्हारे लिए जस्टिस लेके आऊंगा, ना कि तुम अपने लिए जस्टिस को ढूंढो अपने तरीकों से. नहीं, नो. यू नो, फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दिस कि मेरा एक तो केस चल रहा है, एंड आई वेंट टू द लॉयर और एडवोकेट. यूजुअली पीपल go to the advocate and say, please fight my case. I am handovering my case to you. Please fight for me. Full stop. Now the advocate will proceed and he will fight your case in the court in the legal terms. Why? Why we go to the advocate? Because he had studied legal terms. He had studied legal things. So he knows better than us. He can cross some questions which the opposition advocate will raise. This is the thing. और अगर हम इमेजिन करो कि हम खुद जाके कोर्ट में फाइट कर रहे हैं मेरा खुद का केस, एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक इन लीगल वे. मैं खुद नहीं जानता और मैं जाके उधर दादागिरी दिखा रहा हूं कि मैं खुद फाइट करूंगा. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. फाइट करने के लिए एक जन है, and that's the advocate. Similarly, God is like the advocate. Holy Spirit is our advocate. God keh raha hai, I will fight for you. But if we don't allow God, then what will happen? Can God fight for you? तुम खुद झंडे लेके खड़े हो कि हम फाइट करेंगे, लेकिन तुम फाइट करना जानते हो? क्या जानते हो? सिर्फ तलवार लेके फाइट, वो फाइट नहीं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिफरेंट. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज रियल. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज रियल. लेकिन यू डोंट नो स्पिरिचुअल बैटल क्या होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है. यू डोंट नो. और हियर दिस वर्स genuinely says this thing, if you don't forgive, how will Heavenly Father will forgive you? Imagine karo, Heavenly Father
God is Dayavan, God is merciful, so you should also be merciful. बाइबल ये कहता है कि become holy because he is holy. बाइबल में जीसस ये कह रहा है मैथ्यू चैप्टर 5:48 वर्स में, यू मस्ट बी परफेक्ट बिकॉज जस्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट. मतलब तुमको होली भी होने बोल रहा है, परफेक्ट भी होने बोल रहा है. Adopt the characters which God has. He created you in His own image. So you should adopt it. It is in your genes. ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कैसे अडॉप्ट करूं. I don't know how to adopt. It is inside your genes. Really, it is inside your genes. He created. You can adopt. Adopt करना पड़ेगा. Satan knows this thing that if I allow someone to stay in ego, he can even last till 100 years, till he's dead. दूसरा बंदा मर जाएगा फिर भी मैं ईगो में रहूंगा. जिसके ऊपर मैं गुस्सा था वो ऑलरेडी गुजर चुका है. He is dead, but still I am holding ego on him. अरे वो मर गया है. Come on, break this ego. This is a very disgusting weapon of Satan. माइंड में ऐसा ट्रेन कर देता है, ऐसा उल्टा सीधा दिमाग में लाके कि ईगो रखो, उसको क्षमा मत करो. इधर अपना लाइफ स्टैग्नेंट हो जाता है. नाउ इमेजिन क्या होता है कि वो बंदा तुमको हर्ट किया और सपोज कुछ हो गया तुम्हारा. नाउ तुम जिंदा हो, तुम्हारा सेंसेस है, तुम अब क्या सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में ये क्या हो गया, उसके चलते ये हुआ. ओके, ब्लेम दो, ठीक है, ब्लेम दे रहे हो, लेकिन enough of blaming. Now it's time to forgive. We are humans. गुस्सा आता है, ब्लेम करते हैं. I know, very human, but no need to continue it. Enough, हो गया है. अपना भड़स निकाल दिए हो. Now it's time to forgive and forget and move to the next chapter. God is writing the best chapter for you. लेकिन 5 साल, 10 साल, 20 साल, 6 साल, 30 साल बीत जाएगा, लेकिन आप फिर भी वही जगह पे हो. यानी यू आर टेलिंग गॉड मेरे लाइफ में कुछ काम नहीं करता. कैसे करेगा? इफ यू आर नॉट होली, इफ यू आर नॉट परफेक्ट, ट्राई करो. तुम ट्राई कर रहे हो कि मैं परमेश्वर का कैरेक्टर्स अपने लाइफ में लाओ, बट वॉट यू आर डूइंग, यू आर रेदर देन वॉकिंग इन द इमेज ऑफ सेटन. सेटन ये बोल रहा है कि ईगो रखो, फॉरगिव मत करो, रिवेंज लो, एंड यू आर वॉकिंग इन टू हिज वे. तो आपका लाइफ तो स्टैग्नेंट ऐसे भी होगा वैसे भी होगा. स्टैग्नेंट से ऊपर, स्टैग्नेंट को ब्रेक करने के लिए आपको सिमिलरली बाइबल में जो जो कमांड्स दिया गया है आप वो करो. अपने लाइफ में आप देखो कि मैं अपने लाइफ में क्या लॉर्ड जो कह रहा है, क्या मैं वो चीज फॉलो कर रहा हूं. आप इमेजिन करो, गवर्नमेंट में भी बॉडीज होता है कि इमेजिन करो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहा कि अब से पेपर लीक नहीं होगा, सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाएगा. तो ऑब्वियसली देयर आर पीपल आउट देयर who will sit in front of the security cameras, who will watch for 24/7. लेकिन आप इमेजिन करो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ये कह रहा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर खुद जाके सिक्योरिटी रूम में बैठा है. क्या ये होता है? There are people out there who will do the work under him. He just gave the orders. Now there are people out there who will do it.
आर्किटेक्ट लोग डिजाइन देता है, अभी इमेजिन करो आर्किटेक्ट लोग खुद जाके बिल्डिंग को बना रहे हैं, दे आर लेइंग द ब्रिक्स। इमेजिन, लेइंग करने के लिए लेबर्स है, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सिविल इंजीनियर्स है। इमेजिन करो एक खुद आर्किटेक्ट डिजाइन भी दे रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर रहा है, सिविल इंजीनियर भी कर रहा है और लेबरगिरी भी कर रहा है। इमेजिन करो, वन मैन आर्मी हमेशा नहीं चलता, टू बी ऑनेस्ट। ऑलवेज नीड अ टीम। यू आर टीम विथ गॉड, यू एंड गॉड, जीसस एंड होली स्पिरिट। दिस फोर आर द टीम वर्क चलता है। खुद जाके मैं खुद करूंगा, मैं खुद ये चीज करूंगा, ऐसे कभी नहीं चलता। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बाइबल के खिलाफ है ये, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बाइबल के खिलाफ है। तुम खुद जाके तुम दिखा रहे, यू आर नॉट डिपेंडेंट टू गॉड एंड यू आर टेलिंग आई लव गॉड। लव गॉड का मतलब ये है कि तुम परमेश्वर को अलाउ कर रहे हो, यू आर अलाउइंग गॉड दैट डू समथिंग इन माई लाइफ, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। दिस इज वॉट वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिम। स्टैग्नेंट ऐसे ही हो जाता है, हमारा ग्रोथ नहीं होता। दिस इज द वेरी रीजन हम क्षमा नहीं कर पाते, हम कुछ नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल स्टैग्नेंसी को ब्रेक करने के लिए फॉलो एवरीथिंग विच इज इन द बाइबल, फॉलो एवरी कमांड्स इन द बाइबल, ओबे। If you are obedient to God, your growth will boost. If you are not obedient to God, your growth will be in a pause level. You can never grow in Christ. You can never grow spiritually, full stop. Bible says, obey. If you obey, I will bless. Obey, be disciplined, trust His plans. This is the thing you should do, we all should do for our spiritual growth. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।